on to now reading of ledger on that chapter, and today we need to start how to critically analyze a ledger. And in that we are starting with our example 1, the college example which has been taken up. The solution what is there with me right now, that is word to word given in the college. So what you are supposed to do is okay, you need to write what all points are given in this material. The solution which is given by me, you need to write that word by word, because that solution, that material has been issued in the college, right? Now, I hope you all remembered the general points of interpretation whenever we are interpreting any ledger. Now, keeping all those basic points in our mind, let's start with our first example, wherein we would do an analysis of a sales account. Now, if you see on the debit side, 31/3/2014, we have trading account, quantity 2600 given, and the amount given to us is 2,44,500. Now, what this is exactly, we'll see first on the credit side. On 36, we have sold 500 kgs of goods to our customer at 50,000. Then on 39 2013, 550 quantity sold, 55,000 is the value. Then 31/12 को वापस हमने सेल किया, 31/3 को वापस हमने सेल किया, 830 quantities at 74,700. So उसका जो total आया है, that total we have taken it on to the debit side, and whatever is the balance we have transferred it to trading account. Because sales account हम उसको उसकी क्लोजिंग एंट्री पास करते हैं, सेल को हम क्लोज करके ट्रेडिंग अकाउंट में पोस्ट कर देते हैं, इसलिए सेल्स अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस नहीं आएगा. द अकाउंट विच गोज टू ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, जो जितने भी अकाउंट्स है गुड्स रिलेटेड, जितने भी अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट में जाते हैं, जितने भी एक्सपेंस इनकम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं, उनका कोई भी ओपनिंग या तो क्लोजिंग बैलेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा. बिकॉज एट द एंड वॉट एवर आर द ट्रांजैक्शन ऑफ सेल्स और परचेज और एक्सपेंस और इनकम, वी ट्रांसफर इट टू ट्रेडिंग or to profit and loss account. This was discussed in one of the theory point which we did in the first lecture. तो वो अभी यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है, right? Now, as I told you, कि whenever we are doing an analysis of a ledger, 9 points are to be taken into consideration. 9 points are to be taken. So one by one, I have taken all the points. Beta, when I am explaining any point, you pause the video, write down the note, go to the second one, understand, pause the video, write down whatever the note given, and then we go on to all the 9 notes. मतलब मैं एक्सप्लेन कर दूंगा नोट 1, देन आप उसको पॉज कर दीजिए, समझ लीजिए पहले, देन पॉज कर लीजिए, आपको लिख लेना है. देन वी गो टू द सेकेंड पॉइंट, आई एक्सप्लेन, pause the video, you write it down in your notebook. So this is how, by even watching the lecture, you'll able to complete the entire sum and it will be there in your notebook. So the first point is a sales. कौन सा टाइप का अकाउंट है? Yes, all goods and all assets are real accounts. So sales is also a real account. So it is related to goods. So the rule, debit what comes in, credit what goes out, is applied whenever you are making this ledger. मतलब whenever the goods are going out of the business, we'll pass entry on to the debit side. Debit what comes in, credit what goes out. It's a sales ledger. So the goods have gone out. So major entry, देखो सारी entries आपको credit side देखने को मिल रही है. By customer, by customer, by customer, and then ये special type का ledger बनाया है हमने. सेल्स में जनरली सेल्स लेजर में वी राइट ओनली अमाउंट, यहाँ पर क्वांटिटी भी हमने मेंशन की है, राइट? सो टाइप ऑफ अकाउंट रियल, तो रूल कौन सा लगेगा? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट.
देन पीरियड, अब देखो 36 2013 को हमने सेल किया, 39 2013, एवरी 3 मंथ्स के गैप में हम सेल कर रहे हैं, एवरी क्वार्टर के एंड पे हम सेल करते जा रहे हैं. सो ये पीरियड हम अगर देखें तो इट विल बिगिन फ्रॉम 1st of April 2013 and it is ending on 31st March. That is a period of 12 months. It's a period of 12 months. Then the third point of analysis was opening balance. Now, as I already told you, now sales account is an account which goes to trading account. So all trading account related accounts, all profit and loss account related items will not have opening balance nor they have closing balance, because we pass closing entry and we close this account. So opening balance, there is no opening balance for this account because it is related to goods. Now, entries onto the debit side. There is only one entry onto the debit side of this account. It is the transfer entry. अपनी नोटबुक में लिख लेना और अंडरलाइन कर लेना. मैं ट्रांसफर एंट्री होती क्या है वो भी लिखवा रहा हूं, तो वो भी नोटबुक में लिख लेना. ट्रांसफर एंट्री क्या होगी कि हम सेल्स हम अगर सेल्स करते हैं तो वी सेल द गुड्स, तो वी क्रेडिट द सेम. अब जब हम इसको क्लोज कर रहे हैं तो सेल्स को हम क्रेडिट करते हैं, इसे क्लोज कर रहे हैं तो इसको डेबिट करना पड़ेगा, उसकी ऑपोजिट इफेक्ट देनी पड़ेगी. तो सेल्स को हमें डेबिट करने का, ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट करने का. दैट इज द ट्रांसफर एंट्री, और आई वुड से इट्स अ क्लोजिंग एंट्री. क्या एंट्री लिखी हमने? सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट. सो एक ही एंट्री है एंड दैट टू वी हैव डन इट एट द ईयर एंड. तो ट्रांसफर एंट्री, क्लोजिंग एंट्रीज आर आल्सो एवरी टाइम इट इज डन एट द ईयर एंड ओनली. सो डेट भी बराबर है, हमने एंट्री भी लिख दी है, और एंट्री क्या है वो भी मैंने बता दी, सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट. सो कितनी क्वांटिटी है वो क्रेडिट साइड से हमने लिया. देखो टोटल 2600 थी एंड वैल्यू 2,44,500. सो वो हमने ट्रांसफर एंट्री में वहां पर लिख दिया. बढ़िया काम करें. तो 4 हमने समझ लिया. आपको वीडियो पॉज करके चारों 4 लिख लेना है, समझ लेना है. Then entries on the credit side. Now if we see there are 4 entries. Absolutely correct. There are 4 entries. 36 को हमने कस्टमर को सेल किया, 39 को सितंबर को हमने सेल किया, 31 दिसंबर को सेल किया, 31 मार्च को हमने सेल किया. So along with that quantity, value is also given. So what is the explanation given? They show the quantity which is sold along with the total value of sales made in each क्वार्टर. देखो हर 3 महीने में सेल हो रहा है, सो हम क्वार्टरली सेल कर रहे हैं. नाउ ड्यूरिंग द फर्स्ट एंड द सेकंड क्वार्टर 500 एंड 550 किलो का सामान बेचा, 50,000 रुपीज का, 55,000 रुपीज का, रियलाइज्ड रिस्पेक्टिवली एट द सेम रेट ऑफ यूनिट. देखो 100 रुपया में हमने बेचा, रेट ऑफ यूनिट इज 100. अपने पैम्पलेट के बाजू में लिख देना 100 का रेट लग रहा है. Whereas in the third quarter the quantity and the value increased. कितना? 720 हमने बेचा 64,800 पे. जरा पर यूनिट रेट लगाओ, पर यूनिट रेट लगाओ, 90 रुपीज का रेट आएगा. 64,800 डिवाइड बाय 720 करेंगे तो 90 रुपीज का रेट आएगा. तो लिख दो पहले 2 क्वार्टर में 100 रुपीज का रेट लेंगे. फिर देखो लास्ट क्वार्टर एंड थर्ड लास्ट, उसमें कैसा लग रहा है? देखो 720 quantity sold at 64,800 and in the last quarter 74,700 quantity, 74,700 का सामान बेचा है, 830 क्वांटिटी है. तो अगेन अगर पर यूनिट का रेट लगाएंगे तो 90 रुपया आएगा. वो पैम्पलेट में लिख दो 90 रुपये का रेट है. सेल बढ़ा है डेफिनेटली, लेकिन सेलिंग प्राइस पर यूनिट हमारा कम हुआ है. पहले 2 क्वार्टर में 100 रुपीज में सेल कर रहे थे, अभी 90 रुपीज में हमने सेल किया है, 90 रुपीज में हमने सेल किया है. देन वी हैव अ क्लोजिंग बैलेंस. नहीं आएगा, अभी समझा, हमारा क्लोजिंग बैलेंस नहीं आएगा. क्यों नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा क्लोजिंग बैलेंस? बिकॉज सेल्स अकाउंट है, तो एट द एंड ऑफ द ईयर देखो वहां पर लिखा है क्लोजिंग बैलेंस विल बी ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट एट द एंड ईयर एंड, एंड हेंस देयर इज नो बैलेंस व्हिच इज टू बी कैरिड फॉरवर्ड. तो सर अगर हम ये पॉइंट का निचोड़ लिखा ले, निचोड़, तो जो चीज सर बैलेंस शीट में जा रही होगी उसके बैलेंसेस होंगे. यस, हमें जनरली वही सारे चीजों का, वो नहीं सब अकाउंट का, पर्सनल अकाउंट्स जो हैं
देन रियल अकाउंट्स रिलेटेड टू असेट्स, इन सब के आपको बैलेंसेस देखने को मिलेंगे. ट्रेडिंग पीएनएल वाले के नो ओपनिंग बैलेंस, नो क्लोजिंग बैलेंस. ओके, नोटेबल पॉइंट्स. क्या क्या हमने नोट किया, ये जो हमारा लेजर था उसमें हमने क्या क्या नोट किया. तो देखो, पहला, there is a continuous rise in the quantity and the total amount of sales quarter on quarter. सेल्स बढ़ रहा है डेफिनेटली, क्वांटिटी भी बढ़ रही है. वैल्यू वाइज देखेंगे तो ठीक, लेकिन पर यूनिट का भाव गिर रहा है. पहले 100 रुपीज में हम सेल कर रहे थे, अब 90 रुपीज में कर रहे हैं. सेल बढ़ रहा है बट पर यूनिट प्राइस हैज गॉन डाउन. देखो वहां पर लिखा है, ड्यूरिंग द थर्ड एंड द फोर्थ क्वार्टर द क्वांटिटी एंड वैल्यू ऑफ द सेल बोथ इंक्रीज्ड ड्यू टू डिक्लाइन इन पर यूनिट सेलिंग प्राइस. हमने थोड़ा भाव कम किया. पहले जब 100 रुपीज में हमने जो पहले 2 क्वार्टर में सेल किया था, तब क्वांटिटी भी कम बिकी, माल सामान कम बिका. लेकिन जैसे ही थोड़ा हमने यूनिट कम किए, जैसे ही हमने थोड़ा यूनिट हमने इसका कम कर दिया, जैसे ही हमने इसका थोड़ा यूनिट का प्राइस कम कर दिया, 100 से 90 रुपीज कर दिया, सो देखो क्वांटिटी भी बढ़ गई, सेल्स का भी अपना वैल्यू बढ़ गया है. Now it shows that the firm is making efforts for growth of the business and increasing profitability. पूरा गप्पा मारा ये थर्ड पॉइंट. ऐसे अपने ये रीडिंग ऑफ लेजर में अपने पूरे दिल दिमाग सारे बेटा खोल खोल के गप्पा मारेंगे. जितना लिखना हो लिखो. ओ मैं तो भूल गया, ये तो सर ऑनलाइन एग्जाम है, बट लेकिन अगर आपको लिखना है तो ऐसा फुल हमारा दिल खोल के जितना भी आपको लिखना है नोटेबल पॉइंट्स आप लिख सकते हैं. तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि भाई फर्म बहुत एफर्ट्स कर रही है टू ग्रो द बिजनेस. एंड डिफेक्ट्स में देखो, लेजर बनाते वक्त हमने कोई गलती नहीं करी है. जो डेबिट क्रेडिट के रूल्स थे वो बराबर लगाए हैं, क्लोजिंग एंट्री बराबर लगाई है, तो कोई डिफेक्ट्स देखने को मिलता नहीं है. एंड कॉलेज वालों ने कोई सजेशन नहीं दिखाया है, लेकिन अपने पास थोड़े सजेशन हैं. अपने पास थोड़े सजेशन हैं. अगर तुम देखोगे तो नोटेबल पॉइंट्स में एक और हम नोटेबल पॉइंट्स कर सकते हैं. एक और हमारा नोटेबल पॉइंट्स है, देखो, कस्टमर 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 कस्टमर. तो हर 3 क्वार्टर के अंदर, हर ये 3 महीने के गैप में कस्टमर को सेल कर रहे हैं, तो हमेशा हम क्रेडिट सेल कर रहे हैं. तो ये एक नोटेबल पॉइंट में हम ऐड कर सकते हैं कि वी आर ओनली डूइंग क्रेडिट सेल्स एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, विच इज नॉट गुड फॉर द बिजनेस. कितना क्रेडिट सेल करोगे यार, जितना ज्यादा क्रेडिट सेल करोगे उतना रिस्क बढ़ जाएगा. क्या होने का? बैड डेट्स. तो नोटेबल पॉइंट्स में ये लिख दो कि भाई कस्टमर्स हैं तो हम क्रेडिट पर ही हमने सेल किया है एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर. सो दैट इज वन ऑफ द नोटेबल पॉइंट्स कि द क्रेडिट सेल्स हैव बीन डन एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर. एंड सजेशन कॉलेज में नहीं दिया, लेकिन हम सजेशन देंगे कि वॉट एवर द क्रेडिट सेल्स वी हैव डन, we have to avoid doing credit sales. ऐसा सजेशन दे दो, avoid doing credit sales, and if there are more credit sales then there should be a proper system of collection of amount. क्रेडिट सेल कर रहे हो बिजनेस बढ़ाने के लिए, वांदा नहीं, लेकिन फिर एक अच्छा सिस्टम डेवलप करो इन ऑर्डर टू कलेक्ट द डेट्स. सो सजेशन में यहां पर लिख देने के अवॉइड क्रेडिट सेल्स. And then if credit sales are made, पहला तो avoid credit sales, and if credit sales are made, make sure we have a proper system of collection of debts. Okay, so that we can minimize the chances of bad debts. We can minimize the chances of bad debts. So this is how, very simple. The first ledger which was given to us is red. All the 9 points we tried to cover, and the sum gets over. Reading of ledger. This is how you read. This is how you analyze. We would go on to the second sum also. We would go on to the second sum also. Second sum, second sum, second sum. Now the second sum which I need to discuss, that is machinery account. The second college example which we are starting is a machinery account. Now it's a very simple account. Let's first read that. On the debit side, on 1/4/2013, to balance brought down, that's the opening balance given, that's proper.
Beta, because machine is an asset and machine asset generally will have a debit balance, and yes, debit balance ही है उसका 5 लाख. Then 1/7/2013 to यंता अमन लिमिटेड. अब ये क्या है वो हम जब एनालिसिस करेंगे तब हम देखेंगे. Then on the same date to cash account, that is installation charges. Then on the credit side 1/4/2013 बैंक अकाउंट दिया हुआ है 1,50,000. Then depreciation अपने को दिया हुआ है at the rate 10%, 57,500 at the year end 31st March. And on the 31st March we have found out the closing balance 592,500. We have found out the closing balance, which is 5,92,500. So we just read the items on the debit and on the credit side. We'll go in detail okay, what they want to explain us, what is this entry is all about, वो हम सब समझेंगे. तो हमारा पहला एनालिसिस रीडिंग ऑफ लेजर में पहला हम हमेशा लिखते हैं क्या, टाइप ऑफ अकाउंट. नाउ मशीनरी अकाउंट इज अ रियल अकाउंट. Machinery account is a real account. Yes, goods and assets are all real accounts. So again, debit what comes in, credit what goes out rule will be applicable. Debit what comes in, credit what goes out rule will be applicable, which means 1/7/2013 को ये जो यंत्रामन लिमिटेड लिखा हुआ है इसका मतलब डेबिट व्हाट कम्स इन, मशीन आया है इसलिए हमने वो यंत्रामन लिखा है. एंड अलोंग विथ यंत्रामन वी हैव रिटर्न कैश इंस्टॉलेशन चार्जेस. मतलब डेफिनेटली इट इज इंडिकेटिंग कि हमने मशीन परचेज किया है. डेबिट व्हाट कम्स इन मशीन के डेबिट साइड है, मतलब मशीन हैज कम इन, मशीन हमने बाय करी है. क्रेडिट व्हाट गोज आउट, पहली तारीख को देखो 1 अप्रैल को 2013 we have written by bank account which indicates credit what goes out. मतलब this machine has gone out, मतलब हमने ये मशीन सेल कर दिया है. 1/4/2013 को हमने ये मशीन सेल कर दिया है. ठीक है. सो टाइप ऑफ अकाउंट में रियल अकाउंट का रूल लगेगा. बहुत बढ़िया. पीरियड देखो 1/4/2013 ऑन द लेफ्ट साइड 1/4/2013 वी हैव द ओपनिंग बैलेंस. 31/3/2014 वी हैव अ क्लोजिंग बैलेंस. तो पूरा एक साल का ये लेजर है. सो अगेन पीरियड में लिख देंगे इट इज फ्रॉम 1st April 2013 ending on 31st March 2014. Opening balance. Now we have an opening balance of 5 lakh and machinery is an asset, so it will always have a debit balance. एकदम बराबर है काम, कोई उसमें गलती नहीं है. Then items on the debit side, but if you remember the flow of analysis, all those 9 points in the first lecture theoretical we explained and you wrote it down what all the ways we will analyze a ledger. तो उसमें 9 points थे. first, second, third हमने कर लिया. fourth items on the debit side. Now there are 2 items on the debit side. First it is related to yes यंत्रामन जो लिखा है. अभी हमने वो टाइप ऑफ अकाउंट पर से हमने बोला था, टाइप ऑफ अकाउंट पर से बोला यस डेबिट व्हाट कम्स इन, मतलब मशीनरी के वो डेबिट साइड लिखा है, मतलब मशीनरी परचेज करी है. एंड यंत्रामन लिमिटेड नाम दिया है. यंत्रामन लिमिटेड हमें नाम दिया है. इट मीन्स के वी हैव सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट बेसिस. गुड्स सोल्ड, वी हैव परचेज द मशीन ऑन क्रेडिट बेसिस. यस, हमने क्रेडिट पर मशीन परचेज किया है. एंड देन सेकेंड एंट्री के ये जो मशीन हमने परचेज किया है उसका 50,000 का इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस आया है. बेटा यू नो वन थिंग वेरी क्लियरली, द बेसिक्स इन 11th स्टैंडर्ड, whenever any assets we have acquired, any incidental expenses in acquisition of that asset will be added to the cost price of that asset. तो यहाँ पर जो भी इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस हो रहे हैं 50,000 के, वो हमें मशीन के कॉस्ट प्राइस में ऐड कर देने हैं. जो भी इंस्टॉलेशन का खर्चा आया, मतलब मशीन हमारा 2,50,000 का नहीं है, मशीन हमारा 2,50,000 का नहीं है. द मशीन टोटल कॉस्ट प्राइस इज 3 लाख रुपीज. मशीन का अपना कॉस्ट है
₹3,00,000 2,50,000 यंत्रामन को देने हैं और 50,000 कैश में हमने दे दिया, तो मशीन की कीमत है ₹3,00,000 जो हमने बाई करी है. ओके, एंड सेकेंड एंट्री इज फॉर द इंस्टॉलेशन चार्जेस. बहुत बढ़िया. बट आइटम्स ऑन द क्रेडिट साइड को समझाने से पहले अपना कैलकुलेटर उठा लेना. कीप योर कैलकुलेटर्स रेडी सो दैट whatever the explanation I am doing, you can calculate on a calculator and you can confirm whether the explanation is proper or not. वो आप confirm कर सकते हैं. Items on the credit side अगर हम देखें तो there are two items. एक buy bank અને buy depreciation. છેલ્લું તો closing balance છે. એનું explanation we have to see in the later part. So items on the credit side there are two items. The first entry is the machinery sold. देखो buy bank लिखा है ना, बाई बैंक, सो दैट इज एन इंडिकेशन कि भाई मशीन अपना सेल किया है हमने, क्योंकि एंट्री आएगी पैसे आए, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसे आए, टू व्हाट गोज आउट, मशीन. सो बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीन. सो पहली एंट्री है हमने मशीन 1,50,000 में सेल कर दिया है. एंड देन द सेकेंड एंट्री इज फॉर द डेप्रीसिएशन. अब देखो टोटल डेप्रिसिएशन है 57,500. पेंसिल उठा लो, कैलकुलेटर उठा लो, पैम्पलेट में या तो ये वर्किंग करके वो अमाउंट हमें लिख देनी है. देखो कैसे आ रहा है. जो ओपनिंग बैलेंस था 5 लाख का, उसमें से हमने 3,50,000 का सामान बेच दिया. सॉरी, जो ओपनिंग 5 लाख है उसमें से हमने 1,50,000 का सामान बेच दिया, तो बचा कितना, 3,50,000. अब ओपनिंग 1,4 था, यहाँ पर 1,4 को हमने सेल कर दिया, तो बचा 3,50,000 जिसपे पूरे साल का डेप्रिसिएशन आएगा. सो 3,50,000 का 10% निकालेंगे तो 35,000 आएगा. कैलकुलेटर पर कैलकुलेट करके देख लो. 3,50,000 बचा जिसपे पूरा साल का डेप्रिसिएशन आएगा. अब देखो दूसरा मशीन हमने ये यंत्रामन एंड कैश देखे 3 लाख का खरीदा 1 जुलाई को. सो 1 जुलाई से अगर हम गिनना शुरू करें तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीने हो रहे हैं. तो यहाँ पर हमें डेप्रिसिएशन 10% लेना है ऑन 3 लाख रुपीज, बिकॉज 2,50,000 इज ड्यू टू यंत्रामन एंड देन 50,000 इंस्टॉलेशन दे दिया. 3 लाख का मशीन है, सो 3 लाख के मशीन पे 10% डेप्रिसिएशन 9 महीने के लिए. सो कैलकुलेटर पर 3 लाख इंटू 10% इंटू 9/12, सो you'll get 22,500. और ऊपर के 35,000 पहले से थे. 3,50,000 के ऊपर के 35,000 पहले थे. 35 प्लस 22,500, 57,500. तो डेप्रिसिएशन की भी अमाउंट एकदम बराबर कैलकुलेट करिए. डेप्रिसिएशन की भी अमाउंट बिल्कुल सही है बेटा. यही अगेन रिपीट कैसे आया ये 57,500. ध्यान दो, हमारा जो ये मशीन था 5 लाख का ओपनिंग बैलेंस एंड देन 1,50,000 का हमने सेल किया, तो ये जो 3,50,000 अपने पास जो बचा है, 3,50,000 अपने पास जो ये बचा है, उस पे पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा. 3,50,000 पे पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा 10% के हिसाब से, तो उसकी अमाउंट आली रे झाली 35,000. फिर 1,7 को जो दूसरा यंत्रामन से मशीन बाई किया 3 लाख का, तो उस पे 3 लाख के मशीन पे 10% का डेप्रिसिएशन. 3 लाख के मशीन पे 10% का डेप्रिसिएशन फॉर 9 मंथ्स. कैलकुलेटर पर देखो 22,500 आएंगे. सो 35 एंड 22,500, 57,500. અને પછી શું લખ્યું છે, નો डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन द मशीन विच हैज बीन सोल्ड. कॉमन सेंस. अगर हम 1 अप्रैल को ही मशीन सेल कर देंगे, हमारा ईयर भी 1 अप्रैल से शुरू हुआ, 1 अप्रैल को ही अगर मशीन सेल करेंगे, तो इन द करंट ईयर वी हैव नॉट यूज्ड द मशीन फॉर एनी सिंगल डे. सीधा ईयर शुरू हुआ, सीधा हमने बेच दिया, तो कोई डेप्रिसिएशन नहीं आएगा. बात बिल्कुल बराबर बोली है. तो कोई डेप्रिसिएशन नहीं आया है ऑन द मशीन विच वी हैव सोल्ड. राइट. क्लोजिंग बैलेंस. अब क्लोजिंग बैलेंस क्या आएगा, 5 लाख प्लस 2.5 लाख प्लस 50, 3 मतलब 8 लाख हो गए. 5 लाख प्लस 2.5 प्लस 50, 8 लाख. एंड सेम 8 लाख हम ये क्रेडिट साइड टोटल लिख देंगे.
उसमें से 1,50,000 यानी 57,000 माइनस कर दो बेटा. आई होप यू नो हाउ टू कैलकुलेट क्लोजिंग बैलेंस यार. कम ऑन F5 कॉम यार. सो 8 लाख में से ये दोनों माइनस करेंगे तो 52 592 500 दैट्स माय क्लोजिंग बैलेंस. एंड ऐसा ही आ रहा है 5,92,500 दैट्स माय क्लोजिंग बैलेंस जो हमने लिख दिया मशीनरी के अकाउंट में. नोटेबल पॉइंट क्या है? वाइल प्रिपेयरिंग द मशीन अकाउंट, इंस्टॉलेशन के चार्जेस, डिप्रिसिएशन सब हमने बराबर तरीके से कैलकुलेट भी किया है, उसका अकाउंटिंग भी किया है. while charging depreciation, date of purchase and sales have been taken into consideration कि कब सामान परचेज किया था वो डेट को ध्यान में रख के हमने 9 महीने का डेप्रिसिएशन निकाला. जिस तारीख को सेल किया था उस तारीख को कोई डेप्रिसिएशन नहीं आएगा बिकॉज द सेल वॉज डन ऑन द वेरी फर्स्ट डे. लेकिन नोटेबल पॉइंट्स में एक बात ये भी आ रही है कि मशीन हमने 1,50,000 में बेच दिया लेकिन उस पर प्रॉफिट हुआ लॉस कुछ पता नहीं है. कुछ पता नहीं है प्रॉफिट है कि लॉस, तो वो पॉइंट इस लेक्चर में नहीं दिया है तो वो नोटेबल में हम इंक्लूड कर सकते हैं कि नो इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑन द प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ द असेट ऑन 1 अप्रैल. प्रॉफिट हुआ कि लॉस ये हमको पता नहीं है. तो वो एक नोटेबल पॉइंट में एक एडिशन आप डाल सकते हैं कि नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन अबाउट द प्रॉफिट और लॉस ऑन द सेल ऑफ द असेट विच टुक प्लेस ऑन 1 अप्रैल. डिफेक्ट में कोई डिफेक्ट नहीं है. सब जो डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट ऑफ व्हाट गोज आउट के रूल के हिसाब से होना चाहिए वो रूल के हिसाब से ही हमने किया है, कुछ चेंज नहीं है उसमें. एंड सजेशन सारे अकाउंटिंग एंट्री फॉलो हुई है. क्या सजेशन दे, बस एक लाइन में निपटा देने का कोई सजेशन नहीं है, सब बराबर है. तो अरे हो गया 9 पॉइंट खत्म. सजेशन में ऐसा ही लिख दिया हमने कि सारे अकाउंटिंग रूल हमने फॉलो करें तो कोई टेंशन की बात नहीं है. राइट अब इसके बाद अपना एक लेजर का एनालिसिस बचेगा विच विल बी डूइंग इट इन द नेक्स्ट सेशन. बाय बाय बाय.